Hello, Assalamu alaikum. वेलकम बैक टू आवर चैनल इन जील. दिस इज आनंद. And this is Farah. सो आज के वीडियो का टॉपिक है बिगेस्ट पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज ऑफ 2022. क्या बोल रही थी? क्या 20 के 2? 2022 की जितनी भी बिगेस्ट पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज हुई हैं वो आज हम लोग देखने वाले हैं. बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और अगर वीडियो पसंद आएगा तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सजेशंस बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में. हाँ, अपने कमेंट ज़रूर हमें दिया करिए जिससे हम लोग को पता चल सके कि और क्या नए नए टॉपिक्स चल रहे हैं रिसेंटली. और लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग ओरिजिनल चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं. ओके, स्टार्ट करें. क्या है बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज, जो देखते हैं. और कुछ भी बोलने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि ये वीडियो इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है. सो या ओके, और ये हमने नहीं बनाया. ये जो भी कंट्रोवर्सीज हुई हैं अभी तक की वो सारी जितने भी मतलब मुझे जो भी चैनल पे मिली है मैंने वहाँ से उठा ली है. ये मेरी अपनी कोई भी इसमें मत समझिएगा कि मैंने इसमें से कुछ भी क्रिएट किया है या क्या किया. ओके, और हम लोग जो कुछ भी अगर अपना व्यू रखते हैं तो वो हमारा पर्सनल व्यू होगा. डोंट टेक इट पर्सनली. और किसी भी पॉलिटिकल मतलब किसी भी पॉलिटिकल मैटर से हमारा कोई लेना देना नहीं है पर्सनली. ओके, हम लोग जैसे अपने अपने थॉट्स एंड सब रख रहे हैं अपने व्यूअर्स के सामने कि हमारे क्या थॉट्स है. ओके, स्टार्ट करते हैं. 1 2 3. As 2022 comes to an end, let's look at the year that was rife with political controversies. What happened? ये रिवाइंड कर रहे हैं. The Indian Express gives you a lowdown on some of the issues that came under the spotlight. We start by Hijab taking a look at the ban. Karnataka hijab row. This was not the first time an incident over a ban on hijab in colleges was reported in Karnataka. What happened? How did it all start? A look at the timeline of events. The hijab controversy first started in Udupi's government pre-university college for girls in classes 11th and 12th. On December 27th, 2 girls among 8 Muslim students were asked to leave the class for wearing hijab inside the classroom. Now, what is a hijab? A hijab is a scarf or dupatta that's worn around the head. The girls usually remove their burqas in the ladies' room before classes start, but this time the college authorities asked them to remove their hijabs as well. 12 Muslim students protested against the college's new directive. However, after authorities threatened to cancel their exam tickets, 4 students stepped back. On January 25th, Karnataka's Education Department issued a circular stating that a committee would be formed to formulate new guidelines on the uniform. Until then, the status quo needs to be maintained. On February 5th, 2022, the government issued an order on uniforms where it states a ban on wearing clothes that might disturb equality, integrity, and public order. On the same day, videos of Muslim girl students pleading with the principal to let them attend classes went viral. On February 7th, few colleges allowed the girls to enter college in hijab but were asked to sit in separate classrooms. The issue flared up after a video from a college in Mandya district drew national attention. The video showed a crowd of young men shouting religious slogans. Amid the rising tensions, the locals claimed that the issue was a politically motivated act and Campus Front of India and pro-Hindu organizations were behind this. From Karnataka, let's head to Delhi where BJP's ex-spokesperson Nupur Sharma stirred a controversy. Nupur Sharma, the BJP spokesperson, has rarely been away from the spotlight. Nupur Sharma's suspension from BJP comes following a backlash from the Arab world over her alleged comments against Prophet Muhammad on a TV news debate. मुझे लगातार कल से मेरे साथ बलात्कार, मेरे परिवारजनों के साथ बलात्कार, गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा सरतन से जुदा और मेरी परिवारजनों की मतलब अब सर धड़ से अलग करने की ऐसी धमकियां आए जा रही हैं. The BJP distanced itself from the issue and said in a statement
that the party was strongly against any ideology which insults a sect or religion. Nupur started her stint in politics as a student leader. In 2008, she went on to win the post of Delhi University Students' Union President. Now, this is the most high profile of her electoral contests in her career remains in 2015 Delhi Assembly election. She took on Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal from the New Delhi seat. However, she lost by 31,583 votes. Eventually, in September 2020, when JP Nadda set up his team, Sharma was picked as a national spokesperson, while also acknowledging that she had the tendency to go overboard sometimes. She unconditionally withdrew her remarks on 5th June 2022 and said that it was never her intention to hurt anyone's feelings. Moving on to our third controversial news story of the year, the Agnipath scheme वो which led to mass स्टूडेंट्स का जो था protests आर्मी वाला across the country. हाँ आज याद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं। आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा। Another controversy that continues till date is the Gyanvapi Mosque case in Varanasi. ज्ञानवापी This is how मस्जिद का it जो वो unfolded. था कि वहाँ पे रिपोर्ट फवारा कमिश्नर है। के माध्यम से सुन लो। सर्वे हुआ। उस सर्वे के बाद जो शिवलिंग मिले उसके बाद वह सब स्पष्टता हो गई है। मैं बहुत न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूँ। इस समाचार की खुशी को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। जो ये दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है, वहाँ की कमेटी ने, मस्जिद की कमेटी ने कहा कि वो तो मस्जिद का फाउंटेन है, फवारा है। कि ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे में शिवलिंग प्राप्त होने के समाचार से एक शिव भक्त के नाते मैं भी बहुत खुश हूँ। देश का हर शिव भक्त खुश है। सदियों से नंदी बाबा की जो प्रतीक्षा थी कि कब मेरे भोलेनाथ
मिलें और कब मैं उनके दर्शन करूं, तो वह शायद अवसर माननीय न्यायालय के आदेश के बाद जो कोर्ट कमिश्नर के माध्यम से सर्वे हुआ, उस सर्वे के बाद जो शिवलिंग मिले उसके बाद वह सब स्पष्टता हो गई है। मैं बहुत न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। इस समाचार की खुशी को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। वजू खाना, जो वजू खाना है, वजू खाने के बीचों बीच हमने कुएं जैसी दीवार देखी और मैंने एडवोकेट कमिश्नर महोदय से रिक्वेस्ट की कि उस पानी को वजू खाने के खाली कराया जाए, कम कराया जाए। और जब वो मेरी रिक्वेस्ट को मान के पानी को कम कराया गया, तब हम उस कुएं जैसे वॉल पे पहुँचे और वहाँ देखा कि काफ़ी बड़ा एक शिवलिंग है, करीब उसकी 4 फीट डायमीटर होगा और 4 फीट डाया का, और करीब 2.5 से 3 फुट लंबा होगा। और वो मुझे ऐसा लगा कि और नीचे तक जा रहा है, और ये बात तत्काल हमें बहुत ज़रूरी थी ऑनरेबल कोर्ट की नॉलेज में लाने की माननीय न्यायालय के। और इमीडिएटली हमने माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन मूव की और ये मांग की कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है, इसको सिक्योर किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, जिस पे माननीय न्यायालय ने सीआरपीएफ के कमांडेंट को और ये डायरेक्शन दिया है कि वहाँ पे राउंड द क्लॉक रहेंगे और उसको प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी यूपी इसको मॉनिटर करेंगे। नहीं, बाबा नहीं मिले हैं। ये दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है, वहाँ की कमेटी ने, मस्जिद की कमेटी ने कहा कि वो तो मस्जिद का फाउंटेन है, फवारा है, और हर मस्जिद में फवारा होता है। और दूसरी अहम बात ये है कि जो कोर्ट से जो कमिश्नर अपॉइंट हुआ वो कोर्ट को नहीं गया। जो पिटिशनर हैं उनका वकील दौड़ कर जाकर जज साहब को बोलता है, जज साहब ऑर्डर दे दिए। भाई अगर शिवलिंग था तो फिर कोर्ट के कमिश्नर को जाके कहना चाहिए था ना। तो वो तो फाउंटेन है, शिवलिंग नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कोर्ट ने जो सील करने के लिए कहा है उस इलाके को, मस्जिद के, वो तो सरासर 1991 के पार्लियामेंट के जो बनाए हुए कानून के खिलाफ है। A controversy ensued in Maharashtra as the Shiv Sena came under attack after an एकनाथ overnight शिंदे का ग्रुप by जो current शिवसेना Maharashtra की CM Eknath गवर्नमेंट Shinde. ब्रेक हो गई थी। In true political fashion, उद्धव Uddhav ठाकरे Thackeray was overthrown as chief minister हम न्यूज़ in में a इतना नहीं matter of रहते। weeks. From forcing Uddhav Thackeray to almost relinquish the chief minister's post of Maharashtra by bringing together 33 rebel Shiv Sena MLAs, Eknath Shinde is the central figure in the Mahadangal that has erupted in Maharashtra. एकनाथ शिंदे, The Shiv Sena MLA holding the Mahavikas Aghadi government at gunpoint. Eknath Shinde started his career doing odd jobs at beer breweries, fisheries, and as an auto rickshaw driver after his family moved to Thane from Satara district of Maharashtra. Shinde's association with Shiv Sena began in the 1980s. In the 1980s, Shinde was close to Thane District Sena President Anand Dighe, and he won a seat at the Thane Municipal Corporation in 1997. In 2004, Shinde became an MLA from Kopri Pachpakhadi. He represented the constituency for 4 consecutive terms. Uddhav Thackeray made Shinde the leader of opposition in Maharashtra Assembly in 2014, and Shinde helped Shiv Sena reconcile with the Bharatiya Janata Party in 2014. He was then made the Minister for Public Works Department. In 2019, Shiv Sena dumped the BJP to tie up with the Congress and the NCP, allegedly making Shinde unhappy with the arrangement. According to Shiv Sena sources, the last straw for Shinde was Shiv Sena's decision to override his suggestion that the party contest the Thane Municipal Corporation polls alone. Fast forward to June 23, Eknath Shinde now claims to have the support of 33 Shiv Sena MLAs. Shinde has also publicly demanded that his party gets out of the unnatural alliance with Sharad Pawar's NCP and the Congress. Well, 2022 was quite controversial and a lot could be in Okay, store for that's 2023. 5 थी। Stay tuned to the Indian Express for all the lowdown on such big stories. Don't forget to subscribe to our news channel. This is Charulata Biswas. Thank you for watching. वहाँ आ गई। ये बहुत बड़ी वाली कंट्रोवर्सीज जो हुई हैं, बहुत मेजर नेशनल लेवल पे, तो ये वो थी।
इंटरनेशनल, कुछ वर्ल्ड, कुछ ग्लोबल लेवल, कुछ ग्लोबली भी चली गई थी। सो दो गई थी, हिजाब कंट्रोवर्सी और जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बयान दिया गया था Statement दिया। उसके लेके गई थी। तो जो मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू है उनकी नहीं, बारी हमें है। पहले ये शिंदे वाली बताओ। तो जो एकनाथ शिंदे जी हैं वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं इस वक्त। ओके, उद्धव ठाकरे थे उनसे पहले, उद्धव ठाकरे जी उनसे पहले थे, पर लेकिन एकनाथ शिंदे जी ने क्या किया था, वो एमएलए को अपनी साइड ले लिया था और उसके बाद फिर उन लोगों का कुछ हुआ था, मतलब ब्रेक करने की कोशिश हुई थी उसको, किसको, पार्टी को। तब एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने उद्धव ठाकरे जी का पलट दिया था गवर्नमेंट। दैट्स समथिंग हाउ इट वेंट लाइक। मतलब मुझे भी कुछ खास नहीं पता है इसके बारे में, क्योंकि हम लोग टीवी नहीं देखते हैं, तो या लेकिन हमें फिर भी नहीं समझ आया जो भी हुआ था हमें। हाँ, तो वो मतलब महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का मेजर ये जो 5th वाली थी वो मोस्टली महाराष्ट्र में हुई थी, वो तो इतना हम लोग को ज्यादा कुछ क्लियर नहीं है इस बारे में। बट अगर उसके पहले वाली ज्ञानवापी मॉस्क वाली अगर बात करें, उसमें क्या हुआ था तो उसमें भी नहीं पता है तो हमें नहीं पता। तो ज्ञानवापी मॉस्क में ये हुआ था कि वहाँ पे एक फाउंटेन है, ऐसा जो है वो मुस्लिम क्लेम करते हैं कि ये एक फाउंटेन है जो मुगल टाइम पे बनाए जाते थे फाउंटेन्स, उसकी तरह है। बट उसी के सामने, उसी मॉस्क के सामने जस्ट एक मंदिर है, मस्जिद के सामने। तो उसमें ये क्लेम होता है कि वो जो नंदी की जो मूर्ति होती है, जो नंदी यानी कि जो शिव जी का वाहन था, ठीक है, नंदी, तो उसका जो फेस होता है वो हमेशा शिव जी के साइड होता है, तो उसका फेस मॉस्क की तरफ है, मस्जिद की तरफ है। तो ये क्लेम होता है कि जो वो फाउंटेन है वो असल में शिवलिंग है, ये क्लेम है। सो ये लड़ाई चली है। बट लेकिन क्योंकि 1991 में गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला था कि जो भी आजादी के पहले के जितने भी चीजें बनी हुई वर्शिप हैं। के लिए है, हाँ। वर्शिप के लिए जितने भी प्लेसेस हैं उनको एज इट इज रहने दिया जाएगा, एक्सेप्ट दी अयोध्या वाला जो केस था, ठीक है, बाबरी मस्जिद वाला, क्योंकि वो एक एक्सेप्शनल केस है जो कई 100 सालों से चल रहा था। सो वो एक्सेप्शन था। बाकी 1991 के गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग आजादी के पहले की जितनी भी चीजें हैं वो एज इट इज रहेंगी, जहाँ जो अपनी वर्शिप कर रहा है वो करता रहेगा। बट ये ज्ञानवापी वाला थोड़ा सा एक और नया एक्सेप्शन निकल के आया था। अब समझ गए? अब ये सॉल्व हो गया है? अभी नहीं, अभी वो पेंडिंग है। तो अभी मस्जिद सील है, मस्जिद मतलब नमाज होती है वहाँ पे, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं आजकल कुछ ज्यादा अपडेट नहीं ले रही हूँ इसके बारे में। मैंने जुलाई अगस्त तक का देखा था, तो नमाज हो रही थी वहाँ पे। बाकी वो क्लेम हो रहा है कि वो फवारा है, जो कि मतलब और भी पुराने जो भी मुगल स्ट्रक्चर्स बने हैं उसमें भी वैसा फवारा मिला है, जिसका कनेक्शन होता है जमीन के साथ और वहाँ से पानी आता है। हाँ, तो लोगों का ये कहना है कि ऐसे कैसे, मतलब क्या 4 फीट का ही केवल गड्ढा किया गया, ये वो ऐसा, मतलब कि चेक हुआ है या जो भी हुआ, मुझे नहीं पता है इस बारे में ज्यादा। तो ये है पूरी कंट्रोवर्सी। अब क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1991 में, जो एक्ट निकला था, मतलब अगर उसमें कहा गया है कि जो भी आजादी के पहले का है, तो उसे ऐसे, मेरा अपना मानना है ये सब, तो उसे छोड़ दो, क्योंकि अगर हम लोग इन सब मुद्दों पे लड़ते रहेंगे तो फिर हमें नहीं लगता है कि इंडिया डेवलप कर पाएगा। हाँ, ये मतलब हमारा अपना मानना है, क्योंकि हम लोग आपसी में लड़ते रह जाएंगे, आपसी में झगड़ते रह जाएंगे, बाकी दुनिया आगे निकल जाएगी, हम लोग यहीं रह जाएंगे भाई, हिंदू मुस्लिम बस। मतलब अगर हम लोग स्ट्रक्चर्स को लेके ही लड़ेंगे, ये उनका कि structures है। अब जो बन गया भाई, हमें क्या पता कि वो लोग किस हिसाब से बना के गए हैं, वो लोग मर गए, सब हो गया, अब हम लोग हैं, तो हम लोगों को भाई आगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। इकोनॉमिक के अलावा हमें अपना खुद का भी डेवलपमेंट करना चाहिए, हम लोग को Personal अपना development। पर्सनल मेंटल डेवलपमेंट करने की सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत बात यही है। हाँ, हम लोग को अपनी सोच का दायरा बढ़ाना चाहिए। और मुझे बस एक ही बात याद है जो एडोल्फ हिटलर ने कहा था कि अगर किसी कंट्री की डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोकना है तो वहाँ के लोगों को रिलीजियस मैटर में फंसा दो, लड़ा दो। तुमने कब पढ़ा ये? हिस्ट्री हमने भी पढ़ी है 10th तक। सो या उसके अलावा जो और क्या थे, एक अग्निपथ, मतलब मुझे लगता है कि अगर 3rd और 5th वाली जो हमने वीडियो देखी उसमें जो कंट्रोवर्सी छोड़ दी, तो बाकी 3 तो रिलीजियस मैटर की कंट्रोवर्सी थी। आधे से ज्यादा। एग्जैक्टली। ओके, सो अग्निपथ वाली जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो तुम्हें पता है या नहीं? वो हमें पता है। हाँ, तो उसमें ये हुआ था कि जो भी जिनको भी आर्मी ज्वाइन करनी है तो वो 4 साल तक वहाँ पे ज्वाइनिंग करके अपनी जॉब कर सकते हैं, फिर पैसे कमा सकते हैं वहाँ से, और फिर वो उस जॉब को छोड़ सकते हैं उसके बाद।
ओके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस गाइस, हमारी कैट कुछ चिल्ला रही है। ओके, हमारी कैट नहीं है, ये बाहर की कैट है, बचा के खाती है। खैर, तो अग्निवीर की जो बात हो रही थी, अग्निपथ स्कीम की, तो अग्निपथ में 4 साल जॉब करो, उसके बाद आप वहां से निकल जाओ पैसे लेके, और नहीं कुछ भी कर उसके लो। बाद ये भी नहीं था कि आपको पेंशन दी जाएगी, हाँ ऐसा भी नहीं। ऐसा भी नहीं था। तो ये और आपकी जो जान की वो होती है गारंटी, क्योंकि आपको बॉर्डर पे भी भेजा जा सकता है। बॉर्डर पे भी भेजा जा सकता है, और बॉर्डर पे भेजने का मतलब ये है कि हाँ फिर ये हो जाता है ना, मान लीजिए एक घर में एक ही लड़का है, तो अब वो गया बॉर्डर पे, अब उसकी मान लीजिए जान खुदा ना खास्ता शहीद हो जाता है वो, तो उसके बाद उसकी फैमिली की गारंटी कौन लेगा? यस, इसके अलावा एक और चीज थी कि 4 साल के बाद आप सबको पैसे देके छुट्टी कर रहे हो, तो उसके बाद वो जॉब क्या करेंगे? उन लोगों के वो जो कि वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करना इज लाइक पहाड़ तोड़ना, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि यहाँ की जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो बहुत अलग है, और मार्केट में यहाँ पे उतरना बहुत मुश्किल है। मार्केट में उतरने के अलावा यहाँ पे रिसोर्सेज ही इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। लाइक अगर आपको किसी एक ऐसे मतलब अगर फील्ड में जाके अगर किसी को बिजनेस करना, तो उसके लिए तो मतलब बिल्कुल आसमान से तारे तोड़ने वाली बात हो जाती है। तो फिर आप कैसे ये उम्मीद करोगे, अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो 30 लाख रुपीस, इनका ये कहना था, यही था कि 30 लाख रुपीस 4 ईयर में मिलेंगे तो वो अपना बिजनेस डाल सकते हो। 30 लाख में कौन सा बिजनेस ऐसा है जो डल जाएगा और चल जाएगा? I don't know। और इसके अलावा स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि जो बच्चे बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं वो सिर्फ 4 साल के लिए कर रहे हैं, तो इस वजह से बहुत बवाल किया था यूपी और बिहार के बच्चों ने, हमारे यहाँ ट्रेनें भी जलाई गई थी। ये कुछ ज्यादा कर दिया था बच्चों ने, एक्सट्रीम कर दिया था, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी थी, इसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन हाँ, उनका जो अपना जो एक वो होता है धरना प्रदर्शन करने का एक तरीका होता है, आप शांति से करो, आसपास वालों को दिक्कत ना हो, आप अपना धरना भी कर लो, क्योंकि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, ठीक है। और इसके अलावा मुझे जो नहीं अच्छा लगा था इस स्कीम के बारे में, वो ये था कि आप उनको मतलब ये कह रहे थे कि और भी देशों में इस टाइप के शॉर्ट टर्म पीरियड्स दिए जाते हैं, तो वहाँ ये होता है कि उनको बॉर्डर पे नहीं भेजा जाता है, और उनको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं, सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। पहले वहाँ पे उनको मतलब सारी मशीनों की वो नहीं सिखाई जाती है कि हाँ वो सब सीख के बाहर जाके गुंडे बन जाए आर्मी से निकल के, ऐसा नहीं होता है। वहाँ एक तो सबसे ज्यादा हमें ये नहीं समझ में आया था कि आप 4 साल के लिए किसी इंसान को डाल रहे आर्मी में, वो अंदर की सारी बातें जान लेगा, तो फिर उसके बाद मान लीजिए उसके दिल में कोई खोट आ जाए और वो जाके लीक करने लगे, पैसे कमाए, क्योंकि और पैसा कमाने के पास उसके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। हाँ, और इसके अलावा मुझे ये भी नहीं अच्छा लगा था कि 4 इयर्स तक वो जो मतलब जो पैसा की वो दे रहे थे ना ज्ञान, पैसा तो वो देशभक्ति कहाँ रहेगी? जो हमारे सिपाहियों में है जज्बा कि हम अपने वतन पे फिदा हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे उसके लिए, तो अब अगर ये लोग कहेंगे पैसे के लिए 4 इयर्स के लिए, तो बच्चे फिर तो पैसे के लिए जाएंगे ना। मतलब ये सब हमारे अपने ओपिनियन है, अपने ओपिनियन है, किसी का इससे कोई लेना देना नहीं है। सो प्लीज अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो मुझे मेल कर सकता है, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ, मैं इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। इसके अलावा कमेंट्स में प्लीज हेट कमेंट्स मत देना, क्योंकि हमारे पर्सनल ओपिनियंस है। 10 बार बोल दिया है, डिस्क्लेमर अभी डाल देंगे भाई। हाँ, वीडियो के स्टार्टिंग में ही रहेगा, मिल गया होगा मतलब आप लोग को अभी तक। ओके, और क्या कंट्रोवर्सी थी? हिजाब तो नंबर 1 थी, उसके पहले वाली पे आओ, नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी जो थी। ओके, सो उस कंट्रोवर्सी के बारे में हम लोग को काफी लेट पता चला था, क्योंकि हम लोग क्या टीवी नहीं है। हाँ, कोई भेज दो भाई। हमारे यहाँ टीवी नहीं चलती है, तो इसलिए हम लोग को पता नहीं चला था। वो तो तब पता चला जब कानपुर में मस्जिद जुमे के दिन मस्जिद नमाज के बाद कुछ बहुत वहाँ पे प्रदर्शन हुआ था, तब हम लोग को पता चला था कि एक्चुअल में हुआ क्या। वहाँ पे पत्थरबाजी हो गई थी वहाँ नमाज के बाद। तो यहाँ पे तो आए थे अपने यहाँ। हाँ, मई एंड के टाइम पे तो हम लोग यहाँ भी मस्जिदों पे बहुत पुलिस खड़ी हो रही थी, 2-3 महीने तक बाहर निकलते थे पुलिस देखती थी। तो वो कंट्रोवर्सी जो थी वो कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई थी, लाइक ग्लोबल लेवल पे चली गई थी वो कंट्रोवर्सी। इनफैक्ट अरब वर्ल्ड को पूरा इंटरफेयर करना पड़ गया था
क्योंकि वो उनके स्टेटमेंट, नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट के बाद जो उन्होंने एक डिबेट में कहे थे स्टेटमेंट, जो कि बहुत ही आपत्तिजनक थे, क्योंकि उन्होंने हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोला था। लाइक मैं बहुत अच्छे वर्ड्स यूज करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर मुझसे कहीं भी कोई भी गलती हो जाती है तो प्लीज मुझे माफ कर दिएगा, क्योंकि ये सब मेरे अपने ओपिनियंस हैं। और हम लोग किसी भी पॉलिटिशियन को या फिर पॉलिटिकल पार्टी को गलत नहीं बोल रहे हैं, हम लोग बस अपने ओपिनियन दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारा राइट है भाई। ओके सो तो उनके जो स्टेटमेंट्स की वजह से जो इतना बवाल हुआ था, और उसके मतलब क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी पार्टी से आती हैं, बहुत ही मतलब हमारी जो इंडिया रूल कर रही है पार्टी, उसकी वो नेशनल स्पोक्स पर्सन थी, तो उनसे इस तरह के स्टेटमेंट की तवक्को नहीं थी किसी को, तो इस वजह से ये मैटर और ज्यादा बड़ा हो गया। और उसके बाद जब उनको, उसके अलावा जब अरब वर्ल्ड ने इंटरफेयर किया था ये कह के कि मतलब किसी कोई हमारे पैगंबर के खिलाफ इस तरीके की बात बोल रहा है एंड स्टिल दैट कंट्री डजंट टेक एनी काइंड ऑफ लाइक एक्शंस और समथिंग, तो फिर वो भी अपना कुछ एक्शन लेंगे। देयर आफ्टर फिर उनको उनके पोस्ट से हटाया गया। इसके अलावा उनके साथ एक और लोग थे, आई डोंट नो हिज नेम, मतलब मैं भूल रही हूँ वो नाम, उनके साथ एक और थे, उनको भी हटाया गया था अपने पोस्ट से। एंड मतलब लोगों का कहना था कि उनको एक पब्लिक अपॉलजी निकालनी चाहिए, जो कि उन्होंने निकाली थी। उनका कहना था कि वो ऐसा मतलब नहीं चाहती थी कि किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट हो या किसी की भी रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट हो, बट स्टिल ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी रही है हमारे 2022 की। और क्या था इस पर्टिकुलर उसमें, वो था कि कतर ने बोला था कि कतर ने वो इंडिया के प्रोडक्ट्स जो भी वहाँ है वो बैन कर देगा, तो सऊदी इंडियंस अरेबिया ने भी यही किया कि हम भी कतर के प्रोडक्ट्स को बैन करेंगे। और इसके अलावा फिर सऊदी अरेबिया में भी हुआ था काफी कुछ, मतलब बहुत ज्यादा हो गया था वहाँ पे, तो पोस्टर्स वगैरह का कुछ लेके इशू हुआ था वहाँ। और इसके अलावा इंडिया में फिर मतलब उनकी ही पार्टी ने बोला था कि वो मतलब इस तरह की चीजें टॉलरेट नहीं करती है पार्टी, कि वो किसी की फीलिंग्स को हर्ट करें, किसी की रिलीजियस और स्पेशली सेंटिमेंटल फीलिंग्स को वो हर्ट नहीं करना चाहते। बाद में मतलब पार्टी की तरफ से भी एक आया था लेटर, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पूरे कंट्री में बवाल हो चुका था इस बात को लेके। इनफैक्ट पूरे अरब वर्ल्ड में बवाल हो गया था इस बात को लेके, क्योंकि उनके स्टेटमेंट ही इतना ज्यादा हर्टिंग था। वेल द फर्स्ट वन, हिजाब कंट्रोवर्सी। वेल ये हिजाब कंट्रोवर्सी जो थी वो क्या थी, तुम्हें एग्जैक्टली पता है? वो यही था कि लड़कियों को स्पेशली, हाँ लड़कियां ही हिजाब लगाती हैं, लड़कियों को ये बोला गया था कि आप क्लास में, स्कूल में नहीं एंटर कर सकते हैं अगर आप ये हिजाब। वहाँ पे कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल आया था, यूनिफॉर्म कोड, ओके, यूनिफॉर्म कोड, जिससे कि मतलब सभी का यूनिफॉर्म जो है वो एक जैसा लगे, यूनिफाइड लगे सबका, मतलब ऐसा ना लगे कि कोई अलग है कोई कुछ और है। तो वो सबको एक लाइन में खड़ा करने के लिए वो लोग एक यूनिफॉर्म कोड निकाले थे स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए। तो वहाँ पे क्योंकि फिर गर्ल्स जो थी वो हिजाब लगा के एंटर करती थी, लाइक वो नकाब वगैरह पूरा पहन के जाती थी, बट क्लासेस में जाने से पहले वो सिर्फ हिजाब रखती थी और यूनिफॉर्म मतलब शो होता था, बाकी हिजाब रहता था। तो इसको लगा था कि ये हिजाब भी हटाओ, प्रॉपर जैसे बाकी बच्चे आते हैं उस तरीके से आओ। तो उनका कहना था नहीं ये हम नहीं हटाएंगे, बिकॉज हमारी जो है रिलीजियस फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं इससे, फेथ जुड़ा हुआ है, सो या हम लोग नहीं हटाएंगे। तो उसके बाद फिर उनको कहा गया एग्जाम नहीं देने देंगे। और वो 11th और 12th की लड़कियां थी, 11th 12th की थी, और फिर कुछ कॉलेजेस में भी हुआ था, कॉलेजेस में भी हुआ था। हाँ, उसके बाद वेल आई डोंट नो अबाउट द कर्नाटका, बट यहाँ मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है फील कि हाँ मेरे हिजाब से किसी को कोई दिक्कत हो। इनफैक्ट मैं पहले नहीं लगाती थी, बट मैंने वही फेब के बाद से स्टार्ट किया, आई गेस मार्च वगैरह से, क्योंकि कंट्रोवर्सी के बाद से और उसके बाद से आई गेस मेरी कोई भी वीडियो बिना हिजाब के नहीं आई है। इसके अलावा इस 5 में तो नहीं था। इसके अलावा जो हिजाब कंट्रोवर्सी हुई क्यों, मतलब वो तो सिर्फ गवर्नमेंट का वो था, कंट्रोवर्सी कब बनी है? कंट्रोवर्सी तब बनी जब कुछ लड़कों ने वो भगवा वाला गमछा डाल के आना कि अगर ये लोग हिजाब लगा के आएंगे तो हम गमछा लगा के आएंगे। सो
हाँ, मेरा ये कहना है कि हिजाब से क्या दिक्कत है, क्योंकि कुछ लोग अपने रिलीजियस उसको पहन के जाते हैं कॉलेजेस में, लाइक कलावा पहन के जाते हैं बहुत से लोग, और बहुत से कंगन पहन के आते हैं। क्रिश्चियंस भी आते हैं अपना वो क्रॉस वगैरह पहन के। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम देयर कि अगर कोई गर्ल अपने हेड को कवर करके आ रही है, क्या इससे किसी की फीलिंग्स हर्ट हो रही है? तुम्हारी होंगी? तुम्हारी होती है? मेरी फीलिंग्स क्या हर्ट होंगी? तुम्हारे बाल है, तुम्हारा सर है, तुम छुपा रहे हो, तुम्हारी मर्जी। हाँ, तो वही ये कंट्रोवर्सी तब बनी थी। फिर ये हुआ था कि कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं इसको सपोर्ट कर रहे थे, पॉलिटिशियन सपोर्ट कर रहे थे। वो भगवा वाला गमछा, मतलब एक ही जैसा गमछा एक ही टाइम पे सबके पास कैसे आया था? बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे थे उस वक्त कि ऐसा कैसे हुआ था। तो इस वजह से कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी नेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक चली गई थी। इसके अलावा एक देखा गया था कि एक लड़की अपने वो हाँ, कॉलेज में वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, बहुत ज्यादा। हाँ, कि वो कॉलेज गई थी अपना असाइनमेंट सबमिट करने, तो वहाँ पे अकेले थी वो लड़की, नकाब में थी प्रॉपर। तो वहाँ पे कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया था और वो श्री राम के नारे लगा रहे थे। तब वो लड़की भी अल्लाहू अकबर कह रही। तो वो वीडियो बहुत वायरल बहुत हुआ था। ज्यादा। बहुत कुछ हो रहा था उस वक्त, पर हम लोग यहाँ टीवी नहीं है तो हम लोग को ज्यादा नहीं पता है। जितना इंस्टाग्राम पे देख ले, ट्विटर पे देख ले, यूट्यूब पे देख ले। हाँ, यही है बस। हम लोग को ज्यादा नहीं पता क्योंकि हम लोग मतलब, लेकिन उसके बाद ये कहा गया था कि वो लड़की नहीं ऐसे तो जीन्स हाँ, टॉप ये पहनती बहुत सारे है, बवाल ऐसा हुए है, थे। तो वैसा फिर मैं उसी बारे में कह रही हूँ कि मैं भी तो फिर पहले हिजाब हम भी नहीं लगाते थे। है। इट डजंट, आप किसी को किसी के पास्ट को लेके जज नहीं कर सकते हो। अब पता नहीं वो लड़की थी भी कि नहीं थी। जो भी हो, मतलब वो नहीं लगाती थी हाँ। हिजाब, क्या करती थी, इससे हमें क्या लेना देना है? ये तो दिखाना कि हाँ, उसको घेर के जबरदस्ती उसके ऊपर लोग आके चढ़ रहे थे, रिपोर्टर्स ने, पुलिस वालों ने, गार्ड्स ने वहां रोका था। फिर जबरदस्ती मतलब क्या है, मतलब कई बार समझ में नहीं। इसके अलावा हम ये 5 के अलावा एक कंट्रोवर्सी जो हुई थी वो कॉलेज में, जो बच्चे को कौन सी टेररिस्ट के नाम से बोला था। वो तो भी रिसेंटली वो तो हमने भी देखी थी recently इंस्टाग्राम पे। तो मतलब ट्विटर पे। हाँ, कि मणिपाल यूनिवर्सिटी की हाँ। थी आई गेस वो। वहाँ पे प्रोफेसर ने एक स्टूडेंट को कसाब, आई गेस, हाँ। मतलब आई एम नॉट श्योर क्या बोला था, बट उसे एक टेररिस्ट का नाम से बुला दिया था। वो मतलब ये मैं श्योर नहीं हूँ कि वो क्या नाम था, बट वो सिर्फ मैंने हाँ। वीडियो क्लिप देखी थी वो। तो वो मतलब वो भी काफी वायरल हुआ था कि वो फिर उस लड़के ने काफी अच्छा रिस्पांस भी दिया था, बहुत पोलाइटली, बहुत रिस्पेक्टफुली उसने उनको बोला था कि आप ऐसे नहीं बोल सकते हो किसी, मतलब उसके रिलीजन की वजह से आप उसको टेररिस्ट या टेररिस्ट के नाम से नहीं बुला सकते। हाँ, और इसके अलावा उसने ये बोला था कि क्या आप अपने फिर उसके बाद वो प्रोफेसर बोलता है कि नहीं, यू आर लाइक माय चाइल्ड। तो वो ये कहता है कि अगर मैं आपका बेटा होता तो क्या आप मुझे किसी टेररिस्ट के नाम से बुलाते, आप अपने बेटे को ऐसे बुलाते? या मतलब ये काफी ज्यादा लोगों के नजर में नहीं आया था, पर मेरी नजर में आ गया था। हम लोगों को बताना था मेरी नजर में आ गया था, इंस्टाग्राम पे मैंने देख लिया था। क्या ये हमारे अपने ओपिनियंस थे, मैं लास्ट में फिर से बोल रही हूँ, ये हमारे अपने ओपिनियंस थे। मैं लिख भी दूंगी, दीज आर माई, मतलब माई आर ओपिनियन। सो इससे किसी का भी नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, किसी का भी लेना देना नहीं था। ओके, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल या किसी भी पर्सन की अगर फीलिंग को हर्ट हुआ है, सो वी आर सॉरी। और इसके अलावा हम लोगों का ये वीडियो बनाने का बस इतना मकसद था कि हम लोग रिएक्शन देख देख के बहुत ज्यादा पागल हो गए थे। हाँ, तो बस कुछ अलग तड़क भड़क सा। तो क्योंकि साल खत्म भी हो चुका है ऑलरेडी, हाँ। तो बस देख लिया हम लोग ने क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ताजा हो गई। 2022 रिवाइंड कर लिया हम लोग ने अपना। सो या दैट्स इट, एंड दिस वीडियो इज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली, डोंट टेक इट पर्सनली प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वी होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और प्लीज कमेंट में मत लड़िएगा। Okay, bye. See you soon in the next video. Till then, take care. Bye.